Good morning, class 11th. Hope you all are keeping fine. Yesterday we ended our discussion here on various types of hundis used to write in various vernacular languages. Now today we will discuss in detail what hundi is and what are its types. Here the definition of hundi is written, but before we see this definition, let us have an example. Suppose A buys something from B, okay, and would request B to pay money after 2 months. For this, A requests to B that write a hundi on me, I will accept it. Means who is the writer of hundi? B, means seller. And who is the acceptor of hundi? A, buyer. Now suppose at the same moment or after that day, next day, B also buys something from C. Okay, and again C also write a hundi which B accepts. Now A has to make payment to B and B has to make payment to C, and amount is same and month is also same, time period is also same. Means suppose 2000 rupees he has to pay, A has to pay B and B also has to C. ठीक है, तो अब 2 months के बाद में B बोलता है कि do not make payment me, make payment to C directly. ठीक है, मुझे पेमेंट करने की बजाय C को डायरेक्टली पेमेंट कर दो, तो उसका भी काम ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स जब C A को हुंडी दिखाएगा, क्योंकि B ने जो हुंडी A के पास लिखी थी वो हुंडी उसने C को ट्रांसफ़र कर दी. इट मीन्स उसने नेगोशिएट कर दी. ट्रांसफ़र को नेगोशिएट भी बोलते हैं. तो जब C A को हुंडी दिखाएगा तो A C को पेमेंट कर देगा और हिसाब बराबर हो जाएगा. सो हुंडी इज सच ए डॉक्यूमेंट, ओके, एंड एन अनकंडीशनल order it means. So now let us have this definition. According to RBI, hundi is an unconditional order in writing, okay, in writing made by a payment. Here who is writing the hundi? B is writing hundi. Okay, so hundi is an unconditional order in writing made by a person directing another. Here who is directing? B is directing to A, okay, directing another to pay a certain sum of money, to a person named in the order. Okay, तो अब वो ऐसा भी कर सकता है, वो अपना नाम भी लिख सकता है हुंडी में और वो C का नाम भी लिख सकता है कि जो ड्यू डेट होगी उस पर पेमेंट मुझे करने की बजाय C को कर देना. ओके, सो हुंडी इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम्ड इन द ऑर्डर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हुंडी. नाउ हैव यू गॉट? यस. देन व्हाट द अनदर फीचर ऑफ हुंडी इज? Hundi is a negotiable, means transferable instrument. Instrument means document. Okay, so transferable instrument written in vernacular means local languages like Bengali, Tamil, Gujarati, etc. Okay, so now from this discussion you might have got the meaning in this example also very well. And one more main thing was there, that Surat hundi was very famous in ancient trade. Okay, now hundi is derived from Sanskrit word hundi. हुंडी जो संस्कृत वर्ड से हुंडी से निकली है, हुंडी का मतलब टू कलेक्ट, मीन्स टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द बायर. ओके, सो उसके लिए हुंडी लिखी जाती थी. एंड one more feature is there that they are somehow related to bill of exchange. अब bill of exchange क्या है? ये इसको आप मॉडर्न टाइम की हुंडी कह लो, है ना. प्रेजेंट टाइम्स में बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ में आता है. हुंडीज़ उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं बिकॉज हुंडीज़ की कोई सेट लैंग्वेज नहीं होती.
and these are also written in vernacular languages. Okay, but bill of exchange is full negotiable instrument. Actually negotiable instrument act, also negotiable instrument act एक एक्ट है 1881। उसमें क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएबल मान के उनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स उसका फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन दिस एग्जांपल बी हैज़ फ्रीली ट्रांसफर्ड टू सी, सो इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट आरबीआई ने हुंडी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं माना है, लेकिन क्या है, अगर हुंडी के ट्रांजैक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है देन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। ओके, सो it is a negotiable instrument. It can be transferred freely and it is similar to bill of exchange. Bill of exchange, the same example. Okay, and बिल ऑफ एक्सचेंज जो मॉडर्न टाइम के जो ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में, क्रेडिट मीन्स उधार के ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। और उसकी एक सेट लैंग्वेज होती है और इसको पूरी तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। सो एक बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंड एक प्रोमिसरी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे प्रोमिसरी नोट में क्या हो गया है, यहाँ पे सेलर बायर पे लिख रहा है दैट काइंडली पे 2000 रुपीज़ टू मी और अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, प्रोमिसरी नोट में क्या होता है दैट द पर्सन हु बाइज द थिंग्स ही हिमसेल्फ मेक प्रॉमिस टू पे द मनी टू अनदर, ठीक है। मीन्स हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज में तो सेलर लिखता है बायर पे, जिसको कि बायर एक्सेप्ट करता है। प्रोमिसरी नोट में बायर खुद ही अपने आप से प्रॉमिस करता है दैट ही वुड पे द मनी 2 months आफ्टर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हुंडी। सो द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ हुंडी मीन्स 2 मेन टाइप्स ऑफ हुंडीज आर दर्शनी हुंडी एंड मुद्दती हुंडी। दर्शनी मीन्स जिसके कि दर्शन करने से ही उसका पेमेंट हो जाएगा, और मुद्दत मीन्स एक टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका पेमेंट होगा, दैट इज दर्शनी हुंडी मीन्स विच इज़ पेबल ऑन साइट, ठीक है। उसका देखते ही उसको पेमेंट करना होगा। सपोज अगर एक दर्शनी हुंडी बी ने ए पर लिखी, ठीक है, दैट whenever I need it you just pay money to me, okay, when I will show it to you. Then A accepts and return back it to B, and then whenever B shows it to A makes the payment. It is called darshani hundi. Okay, so it is just similar to demand bill, means bill का payment जब भी मांगा, bill of exchange है ना, bill means bill of exchange. So bill का payment जब भी मांगा, जब भी डिमांड किया उसका पेमेंट मिल गया। एंड बट यहाँ पे कंडीशन है, इट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। रीजनेबल टाइम होता है क्योंकि जैसे वहाँ पे एक ये हो सकता है कि इनकी एक टाइम लिमिट हो सकती है कि 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता, ठीक है, उससे ज़्यादा का टाइम लिमिट नहीं होता है दर्शनी हुंडी में। मीन्स इतने कम दिनों में अगर कभी भी ज़रूरत हुई मीन्स, बट ये है कि एटलीस्ट वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो फिर भी हो गया कि हाँ चलो जो बायर है उसको 2 दिन की मोहलत मिल गई, ठीक है, और सेलर को भी है कि ठीक है 2 दिन की उसने उधार दे दी, तो उसका भी जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल नहीं हुआ। तो द हुंडीज विच आर पेबल एट साइड, दीज आर नोन एज दर्शनी हुंडी। और मुद्दती हुंडी विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज मुद्दती हुंडी। Okay, so darshani hundis are similar to a demand bill, but muddati hundis are similar to a time bill. Time bill means जिसमें कि 2 months का लिखा है, जैसे मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल दिया था दैट ए विल मेक द पेमेंट 2 months आफ्टर, तो 2 महीने के बाद ही उसका पेमेंट होगा, तो वो कौन सी एक टाइप है, मुद्दती हुंडी का टाइप है। ओके,
एंड बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट दीज हुंडीज़. ओके, मुद्दती हुंडीज़ थोड़ा सा ये एक स्टैंडर्ड वाली मानी जाती है और उनके अगेंस्ट बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द broader classification, further classification of hundi. This darshini and muddati hundis are also further classified into various types of hundis. Okay, darshini hundis are divided into 4 types of hundis. Okay, that is dhani jog hundi, sahajog hundi, firman jog hundi and dekhanar hundi. And again muddati hundi is also divided into 3 types. धानी जोग, फिरमान जोग एंड जोखोमी. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट आते हैं धानी जोग हुंडी पे. ठीक है, इसका जो टाइप कौन सा है, ये दर्शनी हुंडी है. धानी मीन्स ओनर. धानी का मतलब होता है ओनर, मालिक. इट इज़ पेबल टू एनी पर्सन. एनी पर्सन मीन्स whoever is showing that hundi or whoever is holding that hundi. मीन्स जस्ट लाइक अ बियरर चेक. बियरर चेक मीन्स जैसे उसको, बियरर मतलब उसको लाने वाला, जो उसको बियर करता है, जो उसको लाता है. ओके, तो जो भी उस चेक को बैंक में लेकर आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई भी XYZ हो सकता है. सपोज चेक लिखा हुआ है किसी के भी नाम पे, बट दैट इज़ नोन एज बियरर चेक. ठीक है, उस पर किसी का नाम होता नहीं है. वैसे जो भी उसको शो करता है, दिखाता है, उसी को पेमेंट कर दिया जाता है. कि जैसे सेठ ने फ़ोन कर दिया कि हाँ मैंने एक शॉप से मैंने एक स्टाफ को भेजा है और प्लीज़ मेक द पेमेंट टू हिम. तो जो भी हुंडी को शो करेगा, ठीक है, उसको वो पेमेंट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं सहजोग हुंडी. सहजोग हुंडी क्या है? दैट इज़ मेड पेबल टू अ शाह ओनली. शाह मीन्स अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द सोसाइटी और मार्केट. मार्केट में जिसका नाम है, जिसको शाह, सेठ साहब, शाह साहब कहा जाता है, तो ये उसका पेमेंट केवल और केवल उसी को होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी को भी हो जाए, जैसे ऊपर धानी जोग हुंडी में था, ऐसा नहीं है. एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन फ्रीली. अब इट कैन बी ट्रांसफर्ड, अब ये तो है ना, क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है, बिकॉज one respectable person is associated with this type of hundi. Okay, so it is freely transferable. Next is, see here I have written some terms. I will explain you little later. Let's discuss another type of darshini hundi, and that is firman jog. firman मतलब फरमान जो दिया, firman. ओके, फरमान मीन्स ऑर्डर. ऑर्डर देना, फरमान दिया, फरमान जारी किया, ऐसा होता था ना. इट इज़ मेड पेबल टू ऑर्डर ऑफ पे. अब पे मतलब द पर्सन टू whom the payment will be made. So the seller would be known as pay. Now here let us discuss these terms. See, हुंडी को जो लिखता है वो कौन होता है? वो सेलर होता है, या वो उसको ड्रॉर भी बोलते हैं, बिकॉज ही विल रिसीव द पेमेंट. सो उसको ड्रॉर भी बोलते हैं, उसको पे भी बोलते हैं, और उसको होल्डर भी बोलते हैं, बिकॉज ही होल्ड्स द हुंडी आफ्टर एक्सेप्टिंग बाय द बायर. ओके, एंड हुंडी का जो बायर है उसको ड्रॉई बोलते हैं, पेयर बोलते हैं और एक्सेप्टर बोलते हैं. ओके, सो दीज टर्म्स वुड ऑल्सो कम इन अकाउंटेंसी. Then you will have more practice of it. And one more specific thing about firman jog hundi is that it is just opposite of dhani jog hundi. It is just opposite of dhani jog hundi. dhani jog hundi में तो जो पेमेंट होता था वो किसी भी पर्सन को हो जाता था. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें जो ऑर्डर उस पेई ने जो ऑर्डर किया है, सेलर ने जो ऑर्डर किया है कि इसी को पेमेंट करना है, तो वो उसी को ही पेमेंट करेगा. मीन्स थोड़ा सा और वो उसमें स्पेसिफाई, वो उसका नेम मेंशन कर देता था. ओके, दैट जब हुंडी लिखता था उसी टाइम पे जिसको भी पेमेंट करना है उसका नेम वहाँ पे मेंशन कर देता था. ओके, देन नेक्स्ट इज देखनहार हुंडी. देखनहार हुंडी मीन्स
it is also a type of darshini hundi, and which is payable to presenter or bearer. Okay, सो जो भी इसको प्रेजेंट करता था वो दानी जोग हमारी आई है वापस, नहीं सॉरी ये देखनहार है, देखनहार भी धानी जोग हुंडी की तरह ही है, विच इज़ मेड पेबल टू प्रेजेंटर और बेयरर. ओके, जो भी इसको बेयर करेगा या जो भी इसको शो करेगा, जो भी उसको प्रेजेंट करेगा. देन लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट. ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात आ गई है. ठीक है, पेमेंट तो कर देगा भैया किसी को भी, बट अब लाइबिलिटी जिसने पेमेंट रिसीव किया है उसी की होगी. जो बायर है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा. यहाँ पे हो सकता है कि बायर ये रिक्वेस्ट करे कि भैया मुझे देखनहार तरह की हुंडी आई विल एक्सेप्ट. ओके, तो इस तरह से ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी बायर और सेलर के बीच में जो डिसाइड होती है उनके अकॉर्डिंग ये हो सकता है. ओके, देन नेक्स्ट इज धानी जोग मुद्दती भी होती है, धानी जोग दर्शनी हुंडी भी होती है. ठीक है, अब धानी जोग मुद्दती हुंडी क्या है? इट इज़ पेबल टू एनी पर्सन, ये हमारा उसमें भी था. ठीक है, देन नो लाइबिलिटी हु रिसीव द पेमेंट, ये भी उसमें था, दैट नो लाइबिलिटी हु रिसीव द पेमेंट बट पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म. पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म मतलब जिसने रिसीव किया है वो लाइबिलिटी होगी पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक. जैसे सपोज वो मुद्दती हुंडी है कि 2 महीने बाद तो उसका पेमेंट हुआ है. अब 2 महीने बाद उसका पेमेंट उसको हुआ है, लेकिन अब पेमेंट उसको मिल गया है, उसके बाद कितने टाइम पीरियड तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी जिसने कि वो पेमेंट रिसीव किया है. तो वो होगी, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, वो टाइम पीरियड उसमें उनके जब ट्रेड की नेगोशिएशंस होते हैं उसमें उस टाइम पे वो डिसाइड किया जा सकता है. ट्रेड मीन्स चिल्ड्रन, buying and selling is known as trade. The process of buying and selling is known as trade. अब आते हैं फरमान जोग. फरमान मतलब वही ऑर्डर. ओके, फरमान दिया, फरमान जोग दर्शनी हुंडी भी थी, फरमान जोग मुद्दती हुंडी भी है. सो दिस हुंडी इज मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म. ओके, वही मेड पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, फरमान के अकॉर्डिंग हो जाएगी और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा. उस टाइम पीरियड के बाद उसका पेमेंट हो जाएगा. ओके, देन जोखमी हुंडी, ये लास्ट टाइप है हुंडी का. वैसे तो और भी टाइप्स हैं, बट जो हमें अपनी बुक में दिए हुए हैं वही डिस्कस करना है. अब जोखमी हुंडी, जोखिम मीन्स जोखिम, रिस्क. इट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी. इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी का भी थोड़ा सा फीचर कवर होता है, बिकॉज दिस जोखमी हुंडी इज़ जनरली यूज्ड इन सी रूट ट्रेड, ट्रेड डन बाय सी रूट और मारी टाइम रूट. तो अब उसमें क्या है कि इट इज़ मीन्स इट्स पेमेंट will be made only when goods arrive safely to the destination port. अब सपोज लंदन से कोई भी जो गुड्स हैं वो इंडिया के लिए डिस्पैच हुई हैं, बट इंडिया पहुंचने से पहले ही अगर वो रास्ते में वो लॉस्ट हो गई या वो सपोज डूब गया, शिप डूब गया, देन the acceptor or the buyer will not be liable to make the payment, and all the loss would be bear by the seller only. Okay, so it is used in maritime trade, and if goods lost in transit, the drawer or holder means the person who holds the hundi bears the loss and cost, and the drawee carries no liability. Okay, drawee की, एक्सेप्टर की या बायर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी. ओके, होप यू वुड हैव गॉट वेरी वेल. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे.